So here we start revision of second chapter, Organization of Commerce. Now in this chapter you have to learn principles of management. Yes, we start with introduction. See from very past how they were applying managerial skill. Yes, that we can see in our history. Yes, they were using some strategies or their skills in their managerial task. Yes, and gradually several management gurus, thinkers, ideologists, authors have given some principles. Yes, that is basically outcome of their experience. yes एंड देयर एक्सपेरिमेंट्स. yes उन्होंने जो भी स्टडी किया मैनेजमेंट को उसके कुछ आउटकम्स दिए. वो आउटकम्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं. yes which we can use in our managerial field. Now in framing of management principles, number of management gurus contributed. yes their roles which you have to study in this chapter. yes basically इस chapter में हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक टेलर, then पीटर एफ ड्रकर, उसका कंट्रीब्यूशन हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट फॉर 1 मार्क इट माइट बी आस्क्ड दैट हु आर द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. yes so just go through with introduction part. Then here meaning of principle of management is explained. See, all principles of management are general guidelines. yes it is the outcome of their experiences and experiments. yes वो उन्होंने स्टडी करके कुछ principles दिए हैं, वो हम एज अ गाइडलाइन यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ इन आर मैनेजरियल फील्ड. सो वो गाइडलाइन की तरह है. एंड दे हैव गिवन प्रिंसिपल्स बाय प्रूविंग इन प्रैक्टिकल सिचुएशन. उन्होंने प्रैक्टिकल सिचुएशन में कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंसेस के बेस पे कुछ प्रूव करके कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं. yes so here is the definition. In a business unit, some rules, principles are might be formed in relation to human behavior, so the achievement of goals become easy. These principles are called principle of management. अब जो भी principle है management के, उनका human behavior से direct relation है. yes if we are studying, if we are applying those principles with our tactfulness, with proper analyzing the situation and human behavior, we can easily achieve our goal. yes so all those principles are called as principles of management. We can use all the principles in our managerial field. Then concept of principles of management, this is linked to definition. yes जो भी principles हैं management के, वो rigid नहीं है, flexible है. yes वो हम प्रेजेंट सिचुएशन को, ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करके हम हमारी टैक्टफुल से अप्लाई कर सकते हैं. yes ये एक जनरल गाइडलाइन है. एंड ऑल द प्रिंसिपल्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर आर नॉट द लास्ट प्रिंसिपल्स. yes कुछ न्यू प्रिंसिपल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं उनका कनेक्शन ह्यूमन बिहेवियर और प्रेजेंट सिचुएशन से है. yes एंड ह्यूमन बिहेवियर इज कीप ऑन चेंजिंग, सो हम कुछ न्यू प्रिंसिपल्स भी इन्वेंट कर सकते हैं. yes so human behavior and technology, such factors which change periodically, so to cope up with new changes, new principles can be formed. All the managers can use management principles for decision making. yes for their managerial task they have to take number of decisions, और वो decisions लेने में management principles apply हो सकते हैं. they can use management principles. So management principles are general guidelines, yes, which will help the managers to use in their managerial work. Now nature of principle of management, फर्स्ट चैप्टर में है वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, और यहाँ पे जो नेचर है वो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है. yes so जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, सो मेक श्योर कि कौन सा क्वेश्चन है, डोंट मिक्स इट. ठीक है, अब हम यहाँ पे जो नेचर पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल्स का है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है उसका नेचर. ठीक है, सो ये बेसिकली ये प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है. इट इज़ काइंड अ गाइडलाइन विच वी कैन यूज़. yes and we can change, we can bring change in all those principles too, with human behavior, with changing human behavior and changing technology and present situation. yes so here we start with first point, universal acceptance. जो भी principles हैं वो काफ़ी डिटेल स्टडी के बाद
उसका आउटकम है, उसका रिजल्ट है। ये जो उन्होंने स्टडी किया है, जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस या एक्सपीरियंस गेन किया है, या जो एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, यस, उसका आउटकम है। सो इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यस, वी कैन अप्लाई इन मोस्ट ऑफ बिजनेस यूनिट्स, but it depends on present situation and human behavior, on size and nature of business. देन सेकेंड फ्लेक्सिबल, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रिंसिपल है वो रिजिड नहीं है कि कंपल्सरी ये फॉलो करना ही है। यस, अगर ह्यूमन बिहेवियर, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, सो अकॉर्डिंगली वी कैन ब्रिंग चेंजेस इन दोज प्रिंसिपल्स टू। यस, सो ये प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे मैनेजर्स आर फ्री टू bring some new changes. Then general guideline, यहाँ पे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो एक गाइडलाइन की तरह है। यस, 100% उसी तरह से अप्लाई करेंगे और सेम रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ नॉट श्योर। ठीक है, सो हम हर सिचुएशन में एक ही तरह का रिजल्ट गेन नहीं कर पाएंगे। यस, सो वी हैव टू अप्लाई ऑल दोज प्रिंसिपल विथ आर टेक्टफुलनेस। यस, हमें सोच समझ के वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। सो इट इज़ काइंड ऑफ जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, देन बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनका ह्यूमन बिहेवियर से डायरेक्ट रिलेशन है। यस, ह्यूमन बिहेवियर एनालाइज करके उसके हिसाब से हमें प्रिंसिपल अप्लाई करना है। एज ह्यूमन इज़ एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन इज़ एट द सेंटर। यस, मैनेजमेंट इज़ डन बाय द ह्यूमन फॉर द ह्यूमन। यस, तो इसका ह्यूमन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एंड ह्यूमन बिहेवियर इज़ कीप ऑन चेंजिंग। यस, सो वी हैव टू कंसिडर the human behavior and then we have to apply management principles. Then fifth, contingency. In contingency situation where we need to take prompt action or we need to take decision, we can use management principles. Yes, so some unavoidable situation, managerial principle will be helpful. So this is all about the nature of principles of management. Then importance, why it is important? Yes, why all those management principles are important? First, increase in managerial efficiency. See, with the help of principles, management can be done in better way. yes, जो भी मैनेजर्स हैं वो अपनी मैनेजरियल फील्ड में वो प्रिंसिपल को प्रॉपरली अप्लाई करके बेटर वे में मैनेजमेंट कर सकते हैं। यस, सो वी कैन इंक्रीज मैनेजमेंट एफिशिएंसी बाय यूजिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। Then maximum usage and effective administration of resources. See, with help of management principles we can utilize our resources. हमारे जो भी resources हैं हम उसको optimally at maximum level हम utilize कर सकते हैं। Yes, so we can achieve maximum benefit with minimum cost. Yes, so management principles are important to get maximum benefit with minimum cost. Then third, helpful for scientific and logical decision. See, whatever decisions management has to take, that must be real. Yes, that must be based on facts. Yes, वो justifiable होने चाहिए, सही decision होने चाहिए और timely होने चाहिए। Yes, अगर जिस टाइम पे decision लेना है वो टाइम पीरियड अगर पास हो गया है, then there is no sense to take a particular decision. Yes, so जो decisions है वो proper real होने चाहिए, timely होने चाहिए, and that is possible with the usage of management principles. Yes, management principles will provide a key role for appropriate decision. Yes, management को principles helpful होंगे वो appropriate decisions लेने के लिए। ठीक है, so management principles are important. Then fourth, to cope up with changing business environment. See, business environment is not fixed. Yes, it is keep on changing. So to cope up with changing business environment, managerial principles will be helpful. Yes, managers can take help of management principles and they can cope up with changing business environment. Then to fulfill social responsibility. See, by effective implementation of management principles, business unit can easily achieve the social responsibility, the aim of social responsibility. As we know that business and society are inseparable. Yes, business को कुछ social responsibility pay करनी है. Yes, so यहाँ पे management principle का proper use करके, proper apply करके social responsibility pay हो सकती है. Yes, so it is possible with management principles.
Then sixth, useful for research, training and development. Only by using management principles, task of training, education, development is possible. जो भी researches करने हैं, training provide करनी है, development लाना है firm में, that is possible by using management principles. Yes, जो भी principle है वो कुछ experts ने दिए हैं. Yes, अपने experiences and experiment के base पे. Yes, so we can use those principles in our research, training and development work. So in all, we can say that management principles are very important. Yes. Then thoughts of management. ये बहुत ध्यान से समझना, इसमें से 2 मार्क क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में आता ही है. यस, अब देखो जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी मैनेजमेंट गुरुज हैं, सबके ओपिनियन अलग अलग है. यस, मैनेजमेंट इज़ वेरी वाइड फील्ड. यस, वो बहुत वाइड है. सो उससे रिलेटेड सबके ओपिनियन, सबके थॉट्स भी काफ़ी अलग अलग हैं. यस, सो उसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस हैं. सो उनके सिमिलर थॉट के हिसाब से कुछ थ्योरीज बनी है, लाइक क्लासिकल थ्योरी. फिर क्लासिकल थ्योरी में कुछ चेंजेस आए, सो नियो क्लासिकल थ्योरी. यस, और फिर थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. इस तरह के 3 थॉट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. यहाँ पे जो बिहेवियर रिलेटेड थॉट है वो नियो क्लासिकल थ्योरी के अंडर में ही है. ठीक है, मैं ओवरव्यू दे देती हूँ हर थॉट का. सी, थॉट ऑफ क्लासिकल थ्योरी. सो क्लासिकल थ्योरी फर्स्ट कब आई? टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. उस टाइम पे क्लासिकल थ्योरी आई. काफ़ी सारे मैनेजमेंट गुरुज ने कंट्रीब्यूट किया, अपने थॉट प्रेजेंट किए. यस, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कंट्रीब्यूटर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी. ये 1 मार्क में आ सकता है. देन इन फर्दर लाइन्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 एक्सपर्ट्स आर गिवन. यस, फ्रेडरिक टेलर जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए. यस, हेनरी फेयोल जिसने अपने थॉट्स प्रेजेंट किए बाय गिविंग 14 जनरल प्रिंसिपल्स. यस, एंड मैक्स वेबर, उसका भी कंट्रीब्यूशन क्लासिकल थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, बट देयर वर सम लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी. जो क्लासिकल थ्योरी है उसकी कुछ लिमिटेशंस थी. यहाँ पे फाइनेंशियल मोटिवेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, बट ह्यूमन अप्रोच को बहुत इग्नोर किया था. यस, सो देयर वर सम लिमिटेशन. So some experts emerged to establish some new thoughts, some new theory. Yes, जो neo-classical theory है. अब जो neo-classical theory है वो कब आई? So in the start of 20th century. And the thoughts of neoclassical theory presented by Elton Mayo. Yes, जिसने कुछ behavior oriented thoughts present किए और neoclassical theory दी. So here Elton Mayo is called promoter of thoughts of neoclassical theory. ये 1 मार्क के लिए बहुत important है. Yes, and there were some other contributors too. वो भी 1 मार्क में आ सकता है, which I have highlighted. नाउ यहाँ पे जो थॉट्स थे उसमें एक बिहेवियर रिलेटेड थॉट डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. येस, एज वी नो दैट ह्यूमन इज एट द सेंटर. येस, प्रोफेसर उर्विक सेड यू मैनेज योर मैन, मैन विल मैनेज रेस्ट ऑल ऑफ योर वर्क. येस, सो हियर वी हैव टू मैनेज एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इन आवर फर्म. येस, इफ वी आर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ देम, if we are providing facilities, if they are satisfied with job, so they will manage everything in the firm. Yes, and further some important points are given, like behavior, human relation, or their thoughts, how they are satisfied with job or not. All points were emphasized. Yes, so related matters to human behavior are considered in behavior related thoughts. Then thoughts of modern management. A change was occurred in format of industry and business unit after 1960. Yes, काफ़ी सारे new changes आए. So special thoughts, कुछ special approaches की need थी. Yes, so some experts emerged to establish some new thoughts. Yes, और ये जो modern management के thoughts हैं उनमें किस लिए advocacy थी, किसके लिए वो ज़्यादा फेवर कर रहे थे, टू यूज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. येस, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स को इम्पॉर्टेंस दिया गया. येस, एंड देयर वर नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. येस, सो दिस माइट बी आस्क्ड इन 1 or 2 मार्क. अब जो प्रिंसिपल है, बाकी के 2 टॉपिक्स हैं. फर्स्ट जो प्रिंसिपल फ्रेडरिक टेलर ने दिए हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, एंड दूसरे जो फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स है. येस, फर्स्ट वी आर रिवाइजिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्रेडरिक टेलर. नाउ सी, फ्रेडरिक टेलर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, वो 1 मार्क में आ सकता है, दैट यू हैव टू लर्न. एंड ही वॉज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि उसने जो प्रिंसिपल दिए वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए.
ठीक है। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है जो 1 मार्क में आ सकता है, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या है, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। यस, ओनर्स एंड वर्कर्स के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। यस, बट वर्कर्स की कोई वॉइस नहीं थी। they were not free to take decisions, they were not free to use their skills, their ideas and all. Yes, so there was no voice of workers. Yes, the owners were exploiting workers. Yes, so that was traditional method which is known as rule of thumb. Frederick Taylor opposed this traditional concept. Yes, उसने इस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को, रूल ऑफ थंब को अपोज किया और कुछ न्यू थॉट्स प्रेजेंट किए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए। यस, जिसमें मेंटल रिवॉल्यूशन को एम्फसाइज किया। यस, so there must be importance of humans, workers. Yes, then वर्कर को जो पे करना है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। इफ़ वर्कर्स आर वर्किंग मोर फॉर फर्म, इफ़ दे आर मोर एफिशिएंट, सो दे मस्ट बी पेड मोर। यस, सो कुछ न्यू अप्रोचेस उसने प्रेजेंट किए। यस, 3 मैटर्स वर एम्फसाइज्ड। द फर्स्ट, वर्क शुड बी असाइन एज पर एबिलिटी। जो वर्कर एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी है उस हिसाब से उसे वर्क असाइन करना। यस, सो दे कैन गिव देयर 100%। देन सेकेंड, each worker should be instructed to perform maximum work as per category. So whatever work is allotted to worker, they have to complete that task. Yes, so they have to perform at maximum level. Whatever work is allotted must be completed by that worker. And third, if more efficient worker are working in the firm, so they must be paid more than inefficient workers. Yes, so more wages for more work. Yes, so these 3 matters were emphasized. Now there are some principles. First, scientific मेथड कैसी होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए। यस, प्रोडक्शन की, वर्किंग पैटर्न की, ईच एंड एवरी मेथड मस्ट बी साइंटिफिकली चोजन। देन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। हियर टेलर हैज़ डिवाइडेड बोथ वर्क। यस, जो प्लानिंग है वो एक्सपर्ट करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स करेंगे। यस, सो ये दोनों वर्क उसने डिवाइड कर दिए सो प्रॉपरली हो पाए। यस, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, वो बहुत केयरफुली होना चाहिए, सो एक्सपर्ट्स विल डू दैट एंड इम्प्लीमेंटेशन विल बी डन बाय वर्कर्स। देन जॉब एनालिसिस में जो भी वर्कर एम्प्लॉयज़ का वर्क है उसे एनालाइज करना। यस, बेसिकली इसमें 3 स्टडी है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी। कितने टाइम में काम कंप्लीट होना चाहिए, इतने टाइम में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अननेसेसरीली मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। यस, एम्प्लॉय मस्ट नॉट बी दैट मच टायर्ड। यस, अगर वो बहुत टायर्ड होंगे तो वो वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो सम जॉब एनालिसिस मस्ट बी डन। देन फोर्थ, स्टैंडर्डाइजेशन। जो भी काम एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को करना है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड करना। येस, इफ़ दे आर अवेयर दैट एट वॉट स्टैंडर्ड दे हैव टू कंप्लीट द टास्क, दे कैन अचीव देयर एम, दे कैन कंप्लीट द टास्क प्रॉपरली। अगर पता है उन्हें कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, किस तरह से काम करना है, क्या स्टैंडर्ड है, सो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। देन साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जो सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय को, अपॉइंट करना है, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, वो भी साइंटिफिक होनी चाहिए। येस, राइट पर्सन मस्ट बी अपॉइंटेड ऑन राइट प्लेस। येस, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसके स्किल क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे अपॉइंट करना एंड इफ़ रिक्वायर्ड प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। देन फाइनेंशियल मोटिवेशन। सी, अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एफिशिएंट है सो उन्हें ज़्यादा पे होना चाहिए। येस, एक एम्प्लॉय सेम टाइम में बहुत कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है पर दूसरा एम्प्लॉय सेम टाइम में ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, सो वी कैन नॉट गिव द सेम वेजेस टू बोथ। येस, सो वेजेस मस्ट बी मोटिवेशनल, जिससे वो मोटिवेट हो काम करने के लिए। येस, एफिशिएंट वर्कर शुड बी पेड मोर। Then next is economical. During the implementation of scientific management, we are considering that all things must be in scientific way, technical way. Yes, but we cannot avoid the cost of production. Yes, जो हमारी production cost है वो भी कम होनी चाहिए. So we can make that product available to customer at reasonable price. Yes, so we need to
control our cost, we need to minimize our cost of production. Then eighth, mental revolution. See, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, जो रूल ऑफ थम था, उसमें दोनों ग्रुप्स, ओनर्स एंड वर्कर्स के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट थे. यस, वो पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं था. यस, बट हियर Taylor is emphasizing on mental revolution. There should not be stress between owners and workers. Yes, they need to work properly with mutual understanding. Yes, so वो stress reduce होना चाहिए. So these are the principles given by Taylor. ये scientific principles हैं. And three terms which are explained here: techniques of principle of scientific management. जो job analysis में कुछ words आए थे which I explained you. Time study, it means study about time, कि particular ये task complete करने के लिए कितना time require है और वो उतने time में काम हो जाना चाहिए, that is time study. मोशन स्टडी, जो अननेसेसरीली मूवमेंट होती है, जिससे इंडस्ट्रियल फैटिक हो सकता है, वर्कर्स टायर्ड हो सकते हैं, या वेस्टेज हो सकता है रॉ मटेरियल का, वो अननेसेसरीली मूवमेंट नहीं होना चाहिए. फॉर दैट मोशन स्टडी इज़ टू बी डन. देन डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, जो वेज रेट सिस्टम है वो मोटिवेशनल होना चाहिए. येस, एफिशिएंट वर्कर शुड बी पेड मोर. येस, सो फॉर एप्रोप्रिएट वेज रेट स्टडी मस्ट बी डन. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल. आप इस इधर प्रॉपरली याद रखना, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो फ्रेडरिक टेलर ने दिए हैं, वो पूरे साइंटिफिक लॉजिकल हैं. और जो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स है वो 14 प्रिंसिपल है. यू कैन लर्न इन दिस वे फेयोल 14 प्रिंसिपल्स. ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है फेयोल का, which you have to learn. And the further topic which might be asked in your exam. Yes, frequently ये एग्ज़ाम में आता ही है कि जो भी सारी एक्टिविटीज़ है उसको फेयोल ने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है. यस, उसने वर्क के हिसाब से, एक्टिविटीज़ के हिसाब से कुछ सेपरेट एक्टिविटीज़ को सेपरेट किया है. यस, फर्स्ट टेक्निकल एक्टिविटी, उसमें मशीनरी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है. कॉमर्शियल एक्टिविटी में ट्रेड, परचेज, सेल से रिलेटेड. फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस कैसे एक्वायर करना है, कैपिटल कैसे रेज करनी है, हाउ we can utilize our funds. Yes, then safety activities में assets की safety, workers employees की safety, जो हमारे raw material है उसके safety measures लिए जाएंगे. Yes, accounting activity where proper accounts will be maintained. Yes, management activity where all managerial functions will be performed: planning, organizing, direction, coordination and control. So this way Fayol divided all the activities. ये 2 मार्क में आ सकता है. देन इसके प्रिंसिपल्स जो मैंने रिसेंटली आपको करवाए हैं, सो मैं बहुत सिंपली इसका ओवरव्यू दे देती हूँ. डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए. यस, अगर एक ही पर्सन को बहुत सारा वर्क होगा तो वर्क डिले होगा, वो वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा. सो देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपरली डिवाइड करना है एज पर स्किल एंड क्वालिफिकेशन. यस, और वर्क डिवाइड करने से कोई एक पर्सन का वर्कलोड ज़्यादा नहीं होगा, स्पीडीली काम हो पाएगा, स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है. येस, सो दैट शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क. देन सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? असाइनिंग टास्क, एंड अथॉरिटी इज असाइनिंग पावर्स. येस, अब ये दोनों दो साइड है एक ही कॉइन की. येस, इफ आई एम गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नीड टू गिव अथॉरिटी टू. अकेला रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेली अथॉरिटी देना will not be leads to success. Yes, अगर टास्क अचीव करना है, so we have to assign both together. Yes, and there must be balance. जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतने पावर्स होने चाहिए. Yes, so it is about assigning responsibility and authority. Then discipline. फर्म में डिसिप्लिन होना चाहिए. फॉर दैट some code of conduct, some rules must be given to employees and workers, जिससे industrial peace हो, discipline हो. Yes, so we can increase our productivity. हम अच्छे से काम कर पाएंगे, business objective achieve कर पाएंगे. Yes, so that is the principle of discipline. Then unity of command and unity of direction. अब एक ही पर्सन के ऊपर अगर 10 लोग कमांड करेंगे, ऑर्डर देंगे, सो दैट पर्सन विल बी कन्फ्यूज. येस, टू विच ऑर्डर दे हैव टू फॉलो. येस, सो देयर मस्ट बी वन सुपीरियर. एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो ऑर्डर दे. येस, सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन एंड वर्क कैन बी डन ईजीली. देन डायरेक्शन. whenever employees and workers are finding some problems or confusion in their work, they need direction. Yes, so same direction भी एक ही superior के through होना चाहिए.
यस अगर बहुत लोग अलग अलग डायरेक्शन देंगे सो अगेन कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. यस कौन सी डायरेक्शन किस तरह से उन्हें काम करना है विच दे हैव टू फॉलो. सो देयर मस्ट बी यूनिटी इन कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट. जनरल इंटरेस्ट जो बिजनेस का गोल है, बिजनेस का एम है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो हियर मैनेजर्स हैव टू मेक एफर्ट्स टू रियलाइज एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स अबाउट which interest is important. General interest is priority, yes, and their own individual interest is subsidiary, yes, so they can work in better way. Then remuneration to personnel. Remuneration, it means what they are paying, जो उसे पे हो रहा है, wages और salary. So वो भी proper होना चाहिए, appropriate होना चाहिए. जो efficient workers है, ज़्यादा work कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा पे होना चाहिए. So they will be motivated to give more efforts. Then centralization. Centralization का principle ये नहीं है कि हर जगह centralization होना चाहिए. Yes, centralization principle, it means where centralization will work or in which business decentralization will be helpful. Yes, जो छोटी firm है वहाँ पे एक ही जगह power center में हो सकते हैं. So in small scale industry centralization will work, but in large scale firm decentralization will be helpful. Yes, जो centralization है उसमें एक ही owner के पास सारे powers हैं, but decentralization में powers और responsibility delegate होती है. बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स पे पावर होंगे, कोई एक पर्सन के पास पावर नहीं होंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. देन प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. जो स्केलर चेन का प्रिंसिपल है, इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली चेन वाइज होना चाहिए. उस चेन में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए. येस, सो वी कैन जस्ट पास ऑन द इंफॉर्मेशंस प्रॉपरली. जो टॉप अथॉरिटीज़ टॉप लेवल से कुछ भी इंस्ट्रक्शंस बॉटम लेवल तक जा रहे हैं वो प्रॉपरली फ्लो हो. येस, द सेम वे अगर बॉटम लेवल कुछ इन्फॉर्मेशंस कुछ रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर रहा है तो वो प्रॉपरली टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचे. येस, सो देयर शुड बी प्रॉपर चेन. सो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. देन ऑर्डर. यहाँ पे किसी को ऑर्डर देने की, कमांड देने की बात नहीं है. येस, ऑर्डर इट मीन्स अरेंजमेंट, जिसमें दो अरेंजमेंट की बात की है, सोशल अरेंजमेंट एंड मटीरियलिस्टिक अरेंजमेंट. जो मटीरियल्स है वो प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए, सो देयर विल बी नो वेस्टेज, नो अननेसेसरीली मूवमेंट. येस, एंड सोशल अरेंजमेंट इट मीन्स राइट पर्सन मस्ट बी प्लेस्ड एट अ राइट पोजिशन. येस, क्वालिफिकेशन एंड स्किल के हिसाब से पर्सन अपॉइंट होना चाहिए प्रॉपर प्लेस पे. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ order. Next principle is principle of equality. See, all employees and workers must be treated equally. अगर वो equally treated होंगे, कोई biasness नहीं होगी, कोई partiality नहीं होगी, so there will be job satisfaction. वो satisfied होंगे अपनी job से. They will be happy and they can work in better way. So there must be equality among all workers and employees. देन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर. जो उनका टाइम पीरियड है फर्म में वो लॉन्ग टाइम स्टेबल होना चाहिए. वो फर्म में लॉन्ग टाइम तक काम करना चाहिए. दैट इज़ बेनिफिशियरी फॉर दैट पर्सन, दैट एम्प्लॉय एज वेल एज फॉर फर्म. अगर जो भी एम्प्लॉयज़ है, स्किल्ड है, ट्रेंड है, अगर वो फर्म छोड़ देंगे तो फर्म के लिए वो सही नहीं है. येस, अगेन वी हैव टू अपॉइंट अ न्यू एम्प्लॉय, अगेन वी हैव टू गिव ट्रेनिंग. येस, सो एम्प्लॉय लॉन्ग टाइम तक फर्म में होना चाहिए. येस, सो उससे उसका स्किल भी बढ़ेगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा एंड वी कैन अचीव आवर बिजनेस ऑब्जेक्टिव. क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन है, वो सालों से फर्म में काम करेगा, सो ऑब्वियसली हमारा फर्म का फंक्शनिंग प्रॉपरली होगा. येस, सो द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर. देन 13th प्रिंसिपल, इनिशिएटिव. सी, फर्म में इक्वलिटी होनी चाहिए और सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कुछ इनिशिएटिव लेने की. कोई भी टास्क मिल रहा है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि लोग खुद इनिशिएटिव ले, वो सामने से आके कोई टास्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे और वो टास्क कंप्लीट करे. सो दे कैन डेवलप देयर ओन इंडिविजुअल स्किल्स. येस, दे कैन डेवलप देयर कॉन्फिडेंस. येस, उनको कैसे लीडरशिप करनी है, कैसे प्रॉपरली टास्क करना है, वो एबिलिटी डेवलप होगी. So that is the principle of initiative. Then spirit the corps. ये क्या है? तो एक फ्रेंच फ्रेज है. Yes, इसका मतलब क्या है? टीम स्पिरिट, टीम में वर्क करना है.
सब एम्प्लॉयज़ वर्कर्स के बीच में एक फैमिली काइंड ऑफ फीलिंग होनी चाहिए, दैट दे आर इन टीम, येस दे आर टीम, दे हैव टू वर्क इन अ टीम. सो वो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे और हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव होगा. येस, हार्मनी क्रिएट होगी, पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा. येस, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय फेयोल विच यू हैव टू लर्न. ये सेपरेटली भी 1-2 मार्क्स में आ सकता है या 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है. सो लर्न प्रॉपरली. विथ ऑल दीज प्रिंसिपल, फेयोल concluded with some statement that all principles are not the final list. Yes, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, न्यू अपकमिंग मैनेजर्स के एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ न्यू प्रिंसिपल्स भी आ सकते हैं. येस, सो दीज आर नॉट दी एंड लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. देन लास्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर. पीटर एफ ड्रकर का भी जो कंट्रीब्यूशन है टू फ्रेमिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. येस, उसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, वो 1 मार्क में आ सकता है. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2 प्रिंसिपल हाईलाइटेड है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड सेल्फ रेगुलेशन. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इट मीन्स ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैनेजमेंट करना है. येस, एक ही एम होना चाहिए. येस, सो मैनेजमेंट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव. येस, एंड सेल्फ रेगुलेशन. In self-regulation, the person must be aware how they have to work. उन्हें खुद समझ के प्रॉपरली वर्क करना है, प्रॉपरली मैनेजमेंट होना चाहिए. येस, सो दे कैन अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव. हियर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्लेन, सो दैट माइट बी आस्क. सेल्फ रेगुलेशन प्रिंसिपल डिटेल में एक्सप्लेन नहीं है, सो 1 मार्क में सिर्फ एज अ नेम आ सकता है. देन जो भी प्रिंसिपल है, जो कंट्रीब्यूशन है पीटर एफ ड्रकर का, वो कौन कौन सी फील्ड में अप्लाइड है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी 1 मार्क में आ सकता है. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. सो लर्न दिस चैप्टर, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर यूनिट टेस्ट. ये एक्सप्लेनेशन, ये रिविजन के बाद भी अगर कुछ डाउट है, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी.